Well, hello and welcome. This is me, Brian Anthony Thomas, reporting for NewsX. Now, it's very important to know where we are standing and what we are doing here. Yes, we are outside the very Arjikor Medical College where a trainee doctor was brutally killed and raped. Yes, the accused Sanjay Roy was also given us was sent into CBI questioning. Also, even the principal, rather the former principal Sandeep Ghosh, was also sent, summoned by the CBI, and there was a lot of questioning. Also, rather a 60 hour of questioning and grilling was also happened, and even the SC also, they also gave their suggestions, and they also took a suo moto cognizance. Also, now let me show you where we are standing, because this is the very place where this all happened, and we are outside the very Arjikor Medical College, and this you can actually see this is outside of the very college where police officials are they are on standby. And yesterday also the Supreme Court said regarding the rape and murder case that the nation cannot wait another rape to happen, and one should take steps. And also rather the SC also, the Supreme Court also said that the crime was detected early in morning, but the principal tried to pass this off the suicide, Sandeep Ghosh, and that night there was no FIR. And even SC also hit out on the Kolkata police, also saying that it was not handled properly, the body was handed late to the parents. And what was the police also doing, where the question also arised on the Kolkata police, and a serious offence has also taken place, that the SC said, and the crime scene has taken to the hospital. And what were the Kolkata police doing, allowing the miscreants to happen? Questioned by the SC, and also said that completely there is a complete failure of law and order in state, and they are very concerned also. So definitely this also remains very important, that this is the very location where there has been a lot of protests that is happening also all around the globe. You talk about the national capital, you talk about LA, New York, but here where we are is Kolkata, is the very Arjikor Medical Hospital. Before we talk to the doctors, before we get in a conversation with the doctors, I'll just like to show you and give you, all the viewers who are watching us, a picture of how this hospital looks like, how the entire inside of the hospital looks like. This is the very emergency ward. Also, you can actually see there have been placards, also there have been banners of all sorts that is being also put out. You can actually see that this is the very medical college and hospital, and here also there have been a major big banner also that has been put out. And just a while back, around half an hour back, also the CBI had team also reached the very hospital. And also now we'll also like to show you the stage area, which is where the protest has been happening since day one. And also there was another protest that happened at Shastra Bhavan today also, and it's still going on. And also if we show you the visuals also, I request my camera person also to show the banners and everything that is being put up here. You can actually see it's written that they were wanting the justice for the victim, and they want judicial inquiry and exemplary punishment of the culprits. And there have been numerous posters that have been put up by the students, by the doctors from Arjikor. They are here, they have been protesting, and this is the very situation that is happening at the very Arjikor. If you see again at the entrance also, you can actually see and understand that this is the banner, and this is the entry of the hospital. And yes, all over the hospital there have been police officials who are here, who are deployed here from morning till night. And also they are questioning the role of the Kolkata police, because they did not handle it well. And also to the fact that they were even the Supreme Court also yesterday questioned the role of the Kolkata police, that they said that it was handled late at night. And another very important picture that we would like to show you is the very entry. So if we show you, this is the very entry of the hospital, where the CBI team has also reached just a while back also. So this is the very location, this is the very place also where this very incident happening. And there have been numerous protests that have been going on from that day, from the very first day. So yes, you can actually understand. And here also we'd like to show you a very important picture also,
before we go and talk to the doctors, you can actually see a T-shirt also that have been there, which is been also put up here. So again, we'll also be wanting, or we'll be going to talk to the doctors who are protesting, who are here from days, and who have been protesting, who've been talking about the protests. And this is the very this is a poster that have been put out by the doctors who have been protesting from day and night. And here also again, this becomes a very powerful symbol also. You see a T-shirt where there's written justice, there's the T-shirt is written as justice. So definitely it becomes very important as well for people to the doctors, the protesters who are protesting, becomes a voice also, where not just in Kolkata and West Bengal but all over the country there have been numerous voices that have been here. And we'll also be talking to the protesters also, who are sitting from straight away from morning, and they have been, and not just from today but from few days, they have been on protest. They have been in constant protest that have been going on, that has been happening in the city. And we'll be starting off with Shorab, who is here. Shorab, if you can come here. My very first question आपके लिए यही रहेगा कि अब एससी ने कल, सुप्रीम कोर्ट ने कल हियर किया है, उन्होंने कोलकाता पुलिस को भी हिट आउट किया है कि बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया है. डॉक्टर संदीप घोष के अगेंस्ट भी बोला गया है कि उन्होंने पहले सुसाइड बताया था. तो और आज आप लोगों ने स्वास्थ्य भवन में भी प्रोटेस्ट किया है. तो ये सब किस नज़रिए से देखते हो आप? अब टेलीविज़न में लाइव हो तो बताइए किस नज़र से ये देखते हो, और क्या डिमांड अभी भी आप लोगों का बरकरार है? हमारा अभी जो डिमांड अभी भी अनफुलफिल्ड है वो है जो पहला ही डिमांड था हमारा, कि जो दुर्घटना घट गई है, जो हेनस क्राइम हुआ है यहाँ पर, उसके लिए जस्टिस मिल सके. हमने देखा है कि पहले 24 घंटों में एक गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद किसी को भी पुलिस या सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया. अभी भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी खुलेआम घूम रहे हैं चारों, उनसे हमारा ये गेस है कि प्रोबेबली एक लोग तो ये काम नहीं किया था, प्रोबेबली. तो अगर ये सच हो तो बाकी जो लोग थे जिन्होंने ये खून किया और रेप किया था, उन्होंने अभी भी खुलेआम बाहर घूर रहे हैं. दे आर एट लार्ज. सो आवर सिक्योरिटी इज स्टिल एट स्टेक. एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट yesterday gave us promise of security by CISF force. But what we know that CISF cannot remain here indefinitely. After some time they will go away, and we have to work under protection of Kolkata police. If Kolkata police cannot protect us, if we cannot find the faults of Kolkata police due to which the crime can happen here, or due to which the mob attack happened here, then after CISF goes away, what will happen to our security? Also, Supreme Court did hit out on the Kolkata police that it was, the FIR happened late. So what do you have to say about that, where the Supreme Court literally bashed the Kolkata police? We welcome the observations of Honorable Chief Justice of Honorable Supreme Court, because it strengthens our demands that what the administration was doing from the very first hour after the crime was discovered. It was actively suppression of truth. And Honorable Chief Justice of Honorable Supreme Court has also expressed the same views as we have felt. Also, I have a last question for you. What do you think is the role of Dr. Sandeep Ghosh? Because many of the health departments, when we were talking to them also, they were alleging that there might be a criminal Lexus case also that was going on. So what is the role of Dr. Sandeep Ghosh as well? Because he even said that it's a suicide. So what do you think is the role of him? As it is an active investigation, so I will not make any active speculation. But I would also say that such a heinous crime cannot happen if there are two chances. One is it was a failure of hospital administration. Second is hospital administration was actively perpetrating the crime. So whatever the case may be,
our ex-principal Dr. Sondip Ghosh, as the head of the hospital administration, cannot relieve his role, cannot relieve his duty in the crime that happened. Thank you so much, Shaurav, for talking to us. We'll also be attempting to talk to, more people who have been protesting from early on. You have been here from a very long time. We'll also be talking to them. सर, आपसे बात करना चाहेंगे आप लोग काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हो. कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग दिया है और कोलकाता पुलिस को बैश किया है. ये बैश करते हुए कहा है कि इन्होंने बहुत एफआईआर में डिले किया है. डॉक्टर संदीप घोष जो थे उन्होंने पहले सुसाइड बताया था. तो पहले ये बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उसको किस नज़रिए से देखते हो? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो कई हद तक सही था. प्रशासन की, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की गलती थी यहाँ पर, और शायद बात को छुपाने का कोशिश किया गया, जिसके पीछे अपने रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है कॉलेज का रेपुटेशन ख़राब ना हो, इसलिए बोला गया ये सब चीज़, इसलिए हो सकता है सुसाइड करार दिया गया. बट ये किसी तरीके से भी कोई भी इंटेंशन के साथ किया गया हो, ये काम गलत था. उसके मम्मी पापा को ये जानने का हक था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, और उसको छुपाए जाने का एक कोशिश करना ही गलत था. बट सुप्रीम कोर्ट को जब मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया है, मेरे को पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो डॉक्टर्स के फेवर में होगा, और सुप्रीम कोर्ट दीदी को न्याय भी दिलाएगा और ये इंश्योर भी करेगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने वर्क प्लेस में सेफ रहे. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर संदीप घोष का रोल क्या था? क्योंकि एक हम जब हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी बोला था कि शायद यहाँ कोई एक नेक्सस भी चल रहा हो, कोई क्राइम नेक्सस चल रहा हो. क्योंकि पहले भी जब डॉक्टर संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा था कि डॉक्टर संदीप घोष ने पहले ये सुसाइड बता दिया था पेरेंट्स को, फिर बाद में जब बाहर आया तो ये सब सारा हादसा हुआ. तो और फिर सीबीआई ने भी 60 घंटे उनको ग्रिलिंग किया, उनको बुला के समन करके ग्रिलिंग किया. तो उस जो रोल था डॉक्टर संदीप घोष, उसको किस नज़र से उसको देखते हो? देखिए, जो इंटरोगेशन हुआ संदीप घोष सर का, वो हमारे प्रिंसिपल है, तो सीबीआई का इंटरोगेशन वो वाजिब था, क्योंकि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी कि क्या हुआ है या क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग सीबीआई को ब्रीफ करना. अब ये जो नेक्सस वाली बात है, इसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास. ये लोग सोशल मीडिया पे अपनी अपनी थ्योरीज बना के सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ सीनियर्स को भी बदनाम किया गया है, जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, और वो कॉलेज में हमारे साथ प्रोटेस्ट करते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो है सोशल मीडिया पे जो चीज़ें भी देख रहे हैं उसको सच ना माने. सबसे रिक्वेस्ट रहेगा यही मेरा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है उसका लोग वेट करें. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीबीआई को कि थर्सडे से पहले उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना. सीबीआई जो भी रूलिंग देती है उसका प्लीज़ सब कोई वेट करें. सोशल मीडिया पे आप जो भी देख रहे हैं वो देख करके खुद की थ्योरीज या कोई भी थ्योरी ना बनाएं और किसी के ऊपर ब्लेम ना डालें. एक और चीज़, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि आप डिमांड्स क्या था, कितना फुलफ़िल हुआ है, कितना फुलफ़िल नहीं हुआ है, और अभी क्या डिमांड्स है? हमारे जो दर्शक टेलीविज़न में आपको देख रहे हैं, बताइए. सबसे पहली जो हमारी डिमांड है कि ये जो जांच हो रही है ये निष्पक्ष जांच हो. अगर कोई भी यहाँ पे एक पॉलिटिकली एफिलेटेड इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको पकड़ा जाए, और अगर नहीं भी है तो जल्द से जल्द इस केस को क्लोज़ किया जाए और हमारी दीदी को न्याय दिया जाए. और दूसरी चीज़ ये है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मेरी सीनियर्स हैं, मेरी इंटर्न दीदीज़ हैं, पीडीटी कर रही दीदीज़ हैं. तो अब आप ये बताओ मेरे को कि जब वो रात को अपने हॉस्टल वापस जाएंगी काम करके, या फिर जब वो एक ऑन कॉल रूम में रेस्ट करने जाएंगी, तो उनके मन में एक डर बैठा रहेगा कि क्या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए. तो मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इतनी सिक्योरिटी इंश्योर करे कि जितनी भी वुमेन हैं वो अपने वर्क प्लेस में सेफ महसूस करें, स्पेशली डॉक्टर्स. और डॉक्टर्स के अगेंस्ट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है वेस्ट बंगाल में. आप लोगों को पता होगा, पीजी हॉस्पिटल में भी यहाँ पर एक डॉक्टर को ब्रूटली मारा गया है. एक डॉक्टर अगर कोई भी पेशेंट को देख रहा है तो वहाँ चांसेस हैं कि वो पेशेंट की कंडीशन अगर क्रिटिकल है तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है. उसमें लोगों का गुस्सा हो जाना और डॉक्टर को पीट देना, डॉक्टर को ब्रूटली मारना, ये सब चीज़ें गलत है. तो और ये क्यों होती हैं? क्योंकि सिक्योरिटी इनफ नहीं है यहाँ पे. तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर सिक्योर मॉडल इंश्योर किया जाए ताकि डॉक्टर्स अपने वर्क प्लेस में सेफ महसूस करें. और आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा जो मैंने इनसे पूछा था. पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस को, उसको आप किस नज़रिए से देखते हो?
क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने CISF सिक्योरिटी के बारे में बात किया है कि वो इंश्योर होना चाहिए। फिर उन्होंने संदीप घोष को बैश करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले सुसाइड बताया। कोलकाता पुलिस पे हिट आउट किया है कि उन्होंने FIR काफ़ी लेट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस था कल, उसको किस नज़रिए से देखिए सर, कहीं ना कहीं पॉजिटिव था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे लिए वो पॉजिटिव ही है। उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स सेटअप किया है वगैरह वगैरह, और भी जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स थे उसको भी एड्रेस किया है, ठीक है। बट जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे वो है जस्टिस फॉर दीदी, ठीक है। और जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इनडेफिनिट प्रोटेस्ट का कोई एंड नहीं है। हम लोग का पहला मुद्दा है वो वही मेन मुद्दा है। सर हमें चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, डेफिनेटली नो डाउट हमें चाहिए ही चाहिए। हमें चाहिए आपका पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट, CCTV कैमरास, क्विक रिस्पॉन्सिव सब चाहिए। बट जो सबसे पहला डिमांड है वो है जस्टिस फॉर दीदी, और वो जब तक मीट नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। एक और चीज़, सपोर्ट की अगर हम बात करें ऑल ओवर द कंट्री, हम बताएं अगर दिल्ली की बात करें वहाँ से भी प्रोटेस्ट, आप चाहे मैं दिल्ली से ही आया हूँ, दिल्ली में भी मैंने RML से कवर किया है, एम्स से किया है। उनके भी जो RDA डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी सिर्फ OPDs उन्होंने बंद रखा था, इमरजेंसी सर्विसेज था, नॉट एसेंशियल सर्विसेज बंद रखा था। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम टॉक अबाउट लॉस एंजलिस का बात करें, न्यूयॉर्क का बात करें, USA का बात करें, UK का बात करें, हर जगह से इंडियन फ्रेटर्निटी प्रोटेस्ट कर रही है। तो उसको जो सपोर्ट आप लोगों को ऑल वर्ल्ड वाइड मिल रहा है, वर्ल्ड कंट्री में मिल रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम बहुत ग्रेटफुल है सर, है ना, क्योंकि देखिए ये जो जस्टिस का मांग है, अगर हम अकेले मांगते तो शायद हमें नहीं मिलता। बट क्योंकि पूरा देश हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, तो हमारा वो डिमांड जो है बहुत ही कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाता है। वो गवर्नमेंट पे या जो भी अथॉरिटी है ऊपर, ठीक है, उससे प्रेशर बनता है और कहीं ना कहीं वो जस्टिस डिलीवर करने के लिए मजबूर हो जाता है। सो वेरी ग्रेटफुल सर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, या आपको लगता है कि अभी भी जंग अभी बहुत लंबी है? सर कहीं ना कहीं प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है ना, कहीं ना कहीं प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है। और रही बात जंग की, तो सर जब तक ये जस्टिस मिलता नहीं तब तक खत्म नहीं होगी। हम आपसे भी वही सवाल पूछेंगे जो मैंने अभी लास्ट में इनसे पूछा था कि कहीं ना कहीं, हाँ बोलिए। इनके एक सेंटेंस में मैं कमेंट करना था, तो बुरी बात यह है कि हमें प्रेशर बनाना पड़ता है जस्टिस के लिए, यही सबसे बड़ी बुरी बात है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले। FIR लेट से क्यों हुआ, FIR रात को क्यों हुआ, इसका कोई आंसर। जैसे चीफ जस्टिस क्या है कि अगर विक्टिम के बारे में पता चल गया तो सुबह में, तो रात को क्यों पता चला, FIR 11:45 में क्यों हुआ, और ये हमें प्रेशर क्यों बनाना पड़ रहा है, हमें इतना लड़ाई क्यों करनी पड़ रही है, जबकि दीदी का जस्टिस जस्टिफाइड है। वो जो हिनियस क्राइम हुआ है वो तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है उसको। और हम लोगों का जो डिमांड है रैपिस्ट का कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो आपका डिमांड रहेगा कैपिटल पनिशमेंट। एक आपने बोला, उन्होंने CCTVs के बारे में बोला, उन्होंने CPA के बारे में बोला। जब हम दिल्ली में भी थे, सारे डॉक्टर्स RDA का बात करें, फाइम का बात करें, सबका यही है कि CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। हम अभी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, हमने इन दोनों से भी पूछा, हमने सौरभ जो वहाँ थे हमने उनसे भी पूछा। आपको हम पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो था उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? काफ़ी पॉजिटिव है वो, और हम लोग काफ़ी थैंकफुल और ग्रेटफुल हैं सुप्रीम कोर्ट का, और हमें पूरा विश्वास है उन्होंने जो टीम गठन किया है हमारे सिक्योरिटी को लेकर, उस पर उन्हें पूरा भरोसा है, और 2 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट भी देना है, तो उन पर पूरा भरोसा है। और ये बात जग जाहिर है कि डॉक्टर पर आए दिन हमले होते रहते हैं, ये नई बात नहीं है। कोई भी अब हॉस्पिटल को वो लोग अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, हल्का उनके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मारने आ जाते हैं, उनको लगता है कि वो VIP हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोग अगर सबसे पहले हम लोग फ्रंट में रहते तो हम लोग ही रहते हैं, और हम लोग का कई दिनों से डिमांड है कि CPA एक्ट लागू हो देश में, ताकि ये जो कल्प्रिट है इनको जल्द से जल्द सजा मिल सके। अच्छा, एक आखिर का सवाल रहेगा, ये जो डॉक्टर संदीप घोष थे जो फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में यही कहा है कि उन्होंने पहले सुसाइड बोल दिया था,
है ना। और एक और चीज़ ये भी बहुत, हम अगर सोशल मीडिया देखें या कहीं भी देखें तो एक आ रहा है कि शायद यहाँ कोई नेक्सस हो, कोई क्राइम नेक्सस हो। तो आपके नज़रिए से ये संदीप घोष का क्या रोल बनता था या क्या रोल है? वो अभी सीबीआई भी ग्रिल कर रही है, सीबीआई भी 60 घंटे से उनको क्वेश्चनिंग कर रही है, तो संदीप घोष का क्या रोल रहेगा? और एक और चीज़, ये जो आपका जो ये इसका हम बात करें, ये जो सिक्योरिटी का बात करें, इस पर आपका क्या? देखिए, ये काफ़ी संवेदनशील मामला है। इस पर अगर मैं कमेंट करता हूँ तो सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कॉलेज का पार्ट हूँ। तो मुझे पता है कि क्या फेक न्यूज़ चल रही है बाहर में। इस कॉलेज के नाम में भी बहुत कुछ फेक न्यूज़ चल रही है। हमारे काफ़ी सीनियर को भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। बट मैं इस कॉलेज का पार्ट होकर मैं अंदर से समझ पा रहा हूँ कि ये बात सच्चाई नहीं है। अगर 10% बात सच्चाई है तो 90% बात फेक भी सर्कुलेट हो रही है। तो वो बात तो अलग है, फेक न्यूज़ का बात, उस पर सही से मतलब अभी मैं मोहर नहीं लगा सकता हूँ। बट संदीप घोष की बात है तो वो तो मैं भी सवाल करूँगा कि अगर यहाँ पर किसी का अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी लेगा, ठीक है। एंड संदीप घोष को अगर यहाँ से रिजाइन किया गया तो दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसी दिन कैसे बनाया गया, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पूछ रहे हैं और यहाँ के हाई कोर्ट भी पूछ रहे हैं। ये तो ऑब्वियस सवाल है। इस पर तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना चाहिए, क्यों हुआ, उन पे किसका हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Yes, viewers, you can actually see that we've spoken to a numerous number of protesters who were there, who were protesting, and they were also voicing, and they were also saying their demands that yes, they want CPA, they want Central Protection Act, they are wanting that there should be CCTVs. They are even questioning the role of Kolkata Police, the role of Sandeep Ghosh also, who is the former principal, and also another very important question that they are raising is how did Sandeep Ghosh, who left the college, who resigned from this very Arjikor Medical College, and then the next just in a while he got another post as a principal in Calcutta National Medical College. So definitely there are many questions that is being raised, that is being put out by the protesters, by the students also, by the doctors rather, that the role of Sandeep Ghosh, the role of Kolkata Police, because the SC also bashed out on all of these people that was there, and also they were saying that there should be a safe, a proper, safe treatment for women, a safe environment for the women doctors, because you see when we were talking to the doctors also, they were saying that they help the doctors, they are there for the for the patients, but again their safety is being jeopardized, their safety is at stake also. Now yes, before we wrap up, I just want to quickly give a glimpse of where we are, of what is here, of how powerful each pictures, each posters they give out, each the powerful messages that each posters has, which reflects what their demands are, from the very first day till now, and who knows how many more days that the doctors are on strike, they are on protest, and they have been protesting for a longer time. And again, before we wrap up, this is the very Arjikor hospital where this incident happened, where just a few years back Kolkata was considered the safest city for women, but unfortunately that city, the city of joy, also saw something this barbaric, something this tragic, something this horrific, where even now when people talk about it, when I am also talking about it, it definitely puts shiver down my spine. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off for NewsX from Kolkata. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.